गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए अब हम लोग जो है अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने किया था कि हिंदी में तो विश्लेषण कर लिए थे आप, अंग्रेजी में आपका विश्लेषण बचा हुआ था कि नेचर ऑफ स्कूल्स फाउंड इन आवर कंट्री। तो इसको जरा सा आप डिस्कस कर लीजिए कि व्हेन वी स्टडी द अल्टीमेट नेचर ऑफ schools which are found in our country, then we realize one thing, that there are great dissimilarities in its nature. We normally find that two types of schools are found in India. It may be private schools and it may be government schools, private and government. It may be private schools and it may be government schools. On the another on the another hand, when we try to study its nature, we come to know the fact that India is divided into two distinguished areas, that is a rural area and urban area. Rural area and urban area. Normally, when we compare the schools found in rural areas and urban areas, we find that there are great dissimilarities between these two. Normally, we see that schools which are found in rural areas, they are having very less basic infrastructural facilities. They do not have proper environment. They do not have an ideal system of education. They are full of so many defects. As far as when we try to study the nature of school found in urban areas, we understand, or we realize one thing, that in urban areas the schools are in better condition than that of rural areas. The urban schools, either it is of private or it is of government nature, they are better than the rural one. Mostly, in most of the cases, we get this result. The urban schools have better educational facilities, better educational environment than that of rural schools. But this is still a fact that very few schools, either it is private or government, very few of them are maintaining all the basic norms and standard. So we understand that due to huge differences in basic norms and standard of these schools, similar kinds of results are not being obtained. So we can understand it very well that how education plays significant roles in increasing inequality in our society. तो यहाँ पर जो है हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद चलिए अब हम लोग एक नया हेडिंग तैयार करते हैं और उस नए हेडिंग के अनुसार अब आगे लिखिए, पहले हिंदी में लिखिए। सामाजिक असमानता को विकसित करने में शिक्षा की भूमिका।
role of education in increasing social inequalities. In increasing social inequalities. Underline करिए. With the help of following points, we can understand how education plays significant roles in increasing social inequality. निम्नलिखित बिंदुओं की सहायता से हम यह समझ सकते हैं कि कैसे शिक्षा सामाजिक असमानता को विकसित करती है या बढ़ावा देती है. डैश दे दीजिए. चलिए, इसमें चूंकि बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे तो 1 2 3 करके आप इसको लिखते चलिए. पहला पॉइंट लिखिए, आदर्श एवं समान शैक्षिक वातावरण का अभाव. उम्मीद है आपने लिखा है, आदर्श एवं समान शैक्षिक वातावरण का अभाव. लैक ऑफ आइडियल एंड इक्वल एजुकेशनल इन्वायरमेंट. लैक ऑफ आइडियल एंड इक्वल एजुकेशनल इन्वायरमेंट. चलिए, इसको पहले डिस्कस कर लीजिए. तो पहले हिंदी में करूंगा. आदर्श एवं समान शैक्षिक वातावरण का अभाव. जब हम ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पाए जाने वाले भारतीय विद्यालयों का विश्लेषण करते हैं कि कैसे इन विद्यालयों में पाए जाने वाले शैक्षिक व्यवस्थाओं के द्वारा समाज में असमानता बढ़ती है, तो हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि भारत के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जो विद्यालय पाए जाते हैं, प्रायः ऐसा देखने को मिलता है कि इनमें आदर्श एवं समान शैक्षिक वातावरण का अभाव रहता है. जबकि होना यह चाहिए कि विद्यालय कहीं भी अवस्थित हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र में अवस्थित हो या ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित हो, आदर्श एवं समान शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराने की हर संभव चेष्टा की जानी चाहिए. लेकिन यदि हम शहरी क्षेत्र के विद्यालयों का विश्लेषण करें, चाहे वो निजी विद्यालय हों, चाहे वो सरकारी विद्यालय हों, समान रूप से आदर्श एवं समान रूप से आदर्श शैक्षिक वातावरण की व्यवस्था नहीं हो पाती. इनमें विशेष अंतर रह जाता है, जिसके कारण हम देखते हैं कि वैसे विद्यालय जो आदर्श शैक्षिक वातावरण के लिए विशेष रूप से प्रयत्नशील रहते हैं और सभी उपायों को करते हैं, वहाँ के छात्र आदर्श ढंग से विषय वस्तु को सीख पाते हैं और उनमें कुशलताओं का विकास भी आदर्श ढंग से हो पाता है. जबकि हम देखते हैं कि वैसे विद्यालय, चाहे वो कहीं भी हो, शहरी क्षेत्र में हो, ग्रामीण क्षेत्र में हो, यदि समान रूप से शैक्षिक वातावरण, समान एवं आदर्श शैक्षिक वातावरण की उपलब्धता नहीं कराई जाती, तो हम देखते हैं कि छात्र का जो अधिगम स्तर है वो प्रभावित हो जाता है. छात्र अच्छे ढंग से विषय वस्तु को सीख नहीं पाते, आत्मसात नहीं कर पाते, जिसके कारण उनकी कुशलता प्रभावित होती है और परिणामतः हमें यह देखने को मिलता है कि वे अपने जीवन में पिछड़ जाते हैं. सफल जीवन जीने की कला उनमें विकसित नहीं हो पाती और वो धीरे धीरे पिछड़ने लग जाते हैं. तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यह जो है, ये सामाजिक असमानता को जन्म देने वाला एक महत्वपूर्ण कारक निश्चित रूप से है. अंग्रेजी में कैसे लिखिएगा, इसको भी आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए. जैसा कि हमारा जो पॉइंट है, लैक ऑफ आइडियल एंड इक्वल एजुकेशनल environment. Normally, we find that in our rural and urban schools, lack of
ideal and equal educational environment is found. The schools which are found in either rural or urban areas, they fail to have ideal and equal educational environment. Educational environment is very important. For educational environment is very important to develop all the fundamental skills within the students. So we can understand that those schools, whether they are established in rural areas or in urban areas, if they maintain good and effective educational environment, students get success in learning all the basic skills, and as a result of which they become very successful in their life. But on the other hand, in those schools where such ideal educational environment is not being maintained properly, students fail to learn the basic skills, and as a result of which they fail to lead their successful life in future. So we can see how education plays significant role in increasing the social inequality. चलिए, उम्मीद है कि आपने इस पॉइंट को लिख लिया है. अब हम लोग पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं. आदर्श एवं समान प्रशासकीय नीतियों एवं सिद्धांतों का अभाव. लैक ऑफ आइडियल एंड इक्वल एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज और प्रिंसिपल्स. चलिए इसको समझिए. विद्यालय वास्तव में वह स्थान है जहां बालक का भविष्य तैयार होता है, किंतु विद्यालय को आदर्श ढंग से संचालित करना यह कोई आसान कार्य नहीं है, कोई सरल कार्य नहीं है. आदर्श विद्यालय की स्थापना के लिए विशेष रूप से प्रयत्न करने की आवश्यकता है और कई तरह की सावधानियों को रखने की आवश्यकता है. विद्यालय को आदर्श ढंग से संचालित करने के लिए आदर्श प्रशासकीय नीतियों एवं सिद्धांतों की आवश्यकता पड़ती है, ताकि सभी शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति प्रभावी ढंग से की जा सके. किंतु जब हम यह देखते हैं कि कुछ विद्यालय आदर्श प्रशासकीय नीतियों एवं सिद्धांतों का पालन अपने यहाँ करते हैं और इसके लिए विशेष रूप से प्रयत्नशील नजर आते हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ की शैक्षिक व्यवस्था अन्य विद्यालयों की तुलना में उन्नत नजर आती है. वहीं जब वैसे विद्यालयों को हम देखते हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो चाहे वो शहरी क्षेत्र में हो, यदि वे अपने यहाँ आदर्श प्रशासकीय नीतियों एवं सिद्धांतों को महत्व नहीं देते और शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जैसे तैसे किसी भी नीति जैसे तैसे शैक्षिक क्रियाओं को संपादित करते हैं, तो हमें इसका बड़ा ही भयावह परिणाम देखने को मिलता है. ना ही ऐसे परिस्थिति में ना ही विद्यालय के उद्देश्यों की प्राप्ति हो पाती है और ना ही शिक्षा के उद्देश्यों की, जिसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि बालक का भविष्य बुरी तरह प्रभावित होता है. बालक ऐसे परिस्थिति में आदर्श ढंग से सीख नहीं पाता, उसमें कुशलताओं को अर्जित करने में विफल रह जाता है और परिणामतः हम देखते हैं कि वो अपने जीवन में भी पिछड़ जाता है. तो इस प्रकार से हम स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि यहाँ भी शिक्षा की भूमिका बेहद विशिष्ट है, जिसके कारण सामाजिक असमानता जो है वह विकसित होने लग जाती है. चलिए अंग्रेजी में भी आपको उसको मैं समझा दूं. तो जैसा कि अंग्रेजी में आप नोट डाउन कीजिए कि
school is a very specific place, and running a school successfully is not an easy task. It requires so many precautions. It requires so many administrative policies and principles. If the administrative policies and principles will not be met ideally, and if such made policies will not be followed with great sincerity, then neither the aims of school nor the aims of education will be obtained successfully, and the students who will study in such schools, they will fail to learn the basic skills of life, as a result of which they will fail in their life completely. But on the other hand, those schools who are really doing well, those schools who are really following all the basic administrative policies and principles in their campus, they get remarkable success in developing their students in a very effective manner. Students in such environment actually learn all the essential skills of life, and as a result of which they become very successful in their upcoming future. So we can understand from this point as well that how education brings social inequality at the end. तो चलिए अब अगला पॉइंट हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं. नोट डाउन कीजिए जो आपका अगला पॉइंट है, आदर्श एवं समान शैक्षिक सुविधाओं का अभाव. लैक ऑफ आइडियल एंड इक्वल एजुकेशनल फैसिलिटीज. लैक ऑफ आइडियल एंड इक्वल एजुकेशनल फैसिलिटीज. चलिए इसको डिस्कस करते हैं. पहले हिंदी में, आदर्श एवं समान शैक्षिक सुविधाओं का अभाव. विद्यालय वास्तव में वह स्थान है जहां पर देश के भविष्य का निर्माण होता है, बालक के भविष्य का निर्माण होता है. बालक ही वास्तव में देश का भविष्य है, क्योंकि इन्हीं के हाथों में कल देश की सत्ता आएगी, देश का बागडोर आएगा. और यदि इन्हें सभी दृष्टिकोण से तैयार नहीं किया जाएगा, यदि इनका सर्वांगीण विकास नहीं होगा, तो निश्चित रूप से निश्चित रूप से इनमें नेतृत्व के सफल गुण विकसित नहीं होंगे और परिणामतः देश का विकास भी अवरुद्ध हो जाएगा. किंतु बालक का सर्वांगीण विकास करने के लिए यह आवश्यक है कि सभी प्रकार के आधारभूत शैक्षिक सुविधाओं को विद्यालय में मुहैया कराया जाए. और जितने भी विद्यालय संचालित हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्थान पर हों, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों में हो या अर्बन या शहरी क्षेत्रों में हो, उन सभी क्षेत्रों में पाए जाने वाले विद्यालयों में जो शैक्षिक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, वे समान रूप से प्रदान की जाती हों, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं की जाए. क्योंकि बिना शैक्षिक सुविधाओं के विद्यालय अपने शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पाएगा. यदि शैक्षिक सुविधाओं को भेदभावपूर्ण तरीके से विद्यालयों को प्रदान किए जाएंगे, तो ऐसे विद्यालय अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में विफल रहेगा और समाज में असमानता को जन्म देगा. क्योंकि जो विद्यार्थी एक आदर्श विद्यालय में जो विद्यार्थी एक आदर्श विद्यालय से पढ़कर निकलता है, जहां हर प्रकार की शैक्षिक सुविधाएं उसे उपलब्ध कराई जाती हैं, तो ऐसे परिस्थिति में उनका सर्वांगीण विकास हो पाता है, जिसके कारण शारीरिक, मानसिक, राजनैतिक, आर्थिक सभी प्रकार के गुणों का विकास उनमें सफलतापूर्वक हो पाता है, जिसके कारण वो एक सफल जीवन जीने में सक्षम हो पाते हैं. किंतु जब हम देखते हैं कि
कि कई विद्यालय ऐसे हैं जो कि जिनमें की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। तो ऐसे परिस्थिति में वो जैसे तैसे पाठ्यक्रम को चला रहे हैं। कभी कभी पाठ्यक्रम पूरा भी नहीं हो पाता शिक्षकों के अभाव के कारण। तो ऐसे परिस्थिति में भी वो बच्चों को उत्तीर्ण घोषित कर देते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में हम देखते हैं कि बड़े ही हानिकारक परिणाम प्राप्त होते हैं और छात्रों का जो सर्वांगीण विकास है वो नहीं हो पाता, ना ही शारीरिक दृष्टिकोण से, ना ही मानसिक दृष्टिकोण से, ना ही राजनैतिक दृष्टिकोण से, ना ही व्यावसायिक दृष्टिकोण से उनका किसी भी तरह का कोई विकास हो पाता है, जिसके कारण कि वो जीवन की कुशलताओं को अर्जित करने में विफल हो जाते हैं और अंततः एक सफल जीवन जीने के लिए आवश्यक जितने भी कुशलताएं हैं वो उनमें विकसित नहीं हो पाती। परिणामतः अंततः यह देखने को मिलता है कि वे अपने जीवन में ही विफल हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि यह जो सामाजिक असमानता जो पनपती है वो उसके लिए कहीं ना कहीं शिक्षा ही जिम्मेवार है। तो इस प्रकार से हमें जो है आदर्श और समान शैक्षिक सुविधाओं को मुहैया कराने की चेष्टा करनी चाहिए और इसके लिए राज्य तथा केंद्र सरकार को विशेष रूप से प्रयत्न करने चाहिए। अंग्रेजी में कर लीजिए कि when we study the nature of schools which are found in our country, we find one thing, that there is great dissimilarities as far as the educational facilities are concerned. Some of our schools, whether they are in rural or urban areas, they have all the fundamental facilities, all the fundamental educational facilities, but we find that most of the schools fail to have the similar educational facilities, basic educational facilities. As a result of which, we find that schools which have all the basic facilities, they can provide better opportunity to learn all the fundamental skills of life. Such students who are in such schools, they can have the characteristic of all-round development. But on the other hand, we see those students who are the part of those schools where basic educational facilities are not found, they fail to